Good morning, children. Welcome back. In this lecture, we are going to move ahead with the chapter number 4, that is pollination, which we had started in the last lecture, right? So, children, what we had studied in the previous class, do you remember? What all things? We had studied the various parts of a flower. If you remember, I told you that there are 4 whorls in a single flower. Do you remember the names of the 4 whorls? If we start from the outermost whorl, yes, that is calyx, corolla, then we have endosteum, and then we have gynoecium. Do you remember, or should I show you? Yes, you want me to show you? Okay, I'll show you once again. We had discussed about the 4 whorls of a flower. Each of this I had explained you. Clear? The outermost whorl, it comprises of the sepals, and the sepals collectively they are known as calyx. Then we have petals. The petals combinedly they form the 3rd whorl, that is corolla. Then we have this combination of anther and filament, which is known as stamen, and the stamens combinedly they are known as the endosteum, and this is the male reproductive part of the flower, right? And the innermost, it is the carpel, right? The carpels, each of the carpel, it comprises of the stigma, style and ovary. Clear? And this is the female reproductive part of a flower. Clear? All those we had discussed in the last. Also, we had discussed as to what is a complete flower and what is an incomplete flower. If all the 4 whorls are present in a single flower, then it is known as a complete flower. If any of the whorls is missing, then it is known as an incomplete flower, right? Also, we had discussed about the unisexual and bisexual flowers, right? Unisexual means in the flower only one. In the flower only one reproductive part is present. या तो male या तो female reproductive part present है उस एक flower में, right? या तो endosteum है या तो gynoecium है. Then it is known as unisexual flower. Whereas in the case of bisexual flower में क्या होता है? दोनों के दोनों reproductive parts present होते हैं. Clear? So now, children, we are going to move ahead. I am going to explain you as to what is pollination. Now, see, you would have seen number of times that the insects, they are sitting on the flowers, right? The insects, they are sitting on the flowers. They visit the flowers. क्यों जाते हैं insects flowers के पास? To collect their food. अपना खाना लेने के लिए, right? And their food is the nectar that they collect from the flower. Also at the same time, इस time जब insects खाना लेने के लिए flowers के पास जा रहे हैं, at the same time they are also helping in the process of pollination. They are also helping in the process of pollination. कैसे help कर रहे हैं? Now see, what is pollination? उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है as to what is pollination. Pollination है क्या? Right? Now see, here these two are the flowers. 2 फ्लावर है. ये जो मिडिल का पोर्शन है, दिस इज द कार्पेल एंड दिस वन इट इज द स्टेमन. ठीक है, ये एक फ्लावर का है और ये दूसरे फ्लावर का. ये स्टिग्मा है एंड दिस बोथ द what do you say, the flowers, they are bisexual flowers. ठीक है, they both, यहाँ पे जो दिखाया they both are bisexual flowers. अब क्या हो रहा है? सी, मैंने आपको बताया था कि पोलन कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? पोलन दे आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथर. दे आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथर. और इस पोलन के अंदर क्या होता है? मेल गैमेट्स, राइट? या मेल सेक्स सेल्स होते हैं इसमें प्रेजेंट. अब ये जो है मेल गैमेट्स हैं या पोलन जो है, इंसेक्ट यहाँ से लेकर कहाँ आता है? एंथर से लेकर जाता है स्टिग्मा पे. एंथर से लेकर कहाँ जाता है? स्टिग्मा पे. When any of the agent brings the pollen from the anther to the stigma of a flower, it is said to be pollination. मतलब जो ट्रांसफर हो रहा है pollen का एंथर से स्टिग्मा पे, this process it is known as pollination. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? pollination. समझ आया आपको? एंथर. अब ये देखो, pollination क्लियर हुआ. pollination का मतलब है एंथर. pollination का मतलब है द ट्रांसफर ऑफ pollen. pollen
का मूवमेंट, पोलन ग्रेन्स का मूवमेंट एंथर से, एंथर से क्यों, क्योंकि एंथर में ही वो प्रोड्यूस होते हैं, राइट, एंथर से स्टिग्मा पे, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास जो जाता है पोलन ग्रेन, दिस प्रोसेस इट इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन दिस वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है हमारे पास, कौन से, एक तो है सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? ठीक है, अब सी, सेल्फ पॉलिनेशन कब होता है, जब एक फ्लावर है और वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट उसी फ्लावर में प्रेजेंट हैं। तो क्या होता है, यहां से एंथर से जो पोलन है अपने आप यहाँ पे जो पोलन है वो अपने आप स्टिग्मा पे गिर जाता है। तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन, मीन्स when the transfer of pollen grain takes place from the anther of a flower to the stigma of the same flower, same flower के stigma पे गिर जा रहा है pollen, right, of on the same plant या उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पे, देन इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर हुआ? अगेन आई विल एक्सप्लेन यू। सबसे पहले तो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास जाता है, दैट इज पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन मतलब फ्लावर, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके पास दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, अगर पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होता है, ठीक है, देन इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर डिफरेंट फ्लावर, बट एक आपने ऐसा भी देखा होगा कि कई बार एक प्लांट के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, यस, तो इस तरीके से सेम प्लांट है बट फ्लावर्स अलग अलग हैं, देन ऑल्सो इट इज सेड टू बी सेल्फ पॉलिनेशन। ओके चिल्ड्रन, now see, now we are going to discuss about the क्रॉस पॉलिनेशन। और ये जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है ये पी प्लांट में, ग्राउंडनट में, इस तरीके के प्लांट्स में देखने को मिलता है। नाउ क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि स्पीशीज सेम होनी चाहिए। इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। स्पीशीज सेम होने का क्या मतलब है, जैसे सपोज एक फ्लावर, एक है सनफ्लावर और एक है रोज, ठीक है, अगर इंसेक्ट वहां भी बैठता है, रोज पे भी बैठता है और सनफ्लावर पे भी बैठता है, ठीक है, बट अगर वहां से पॉलन, रोज के पास से पॉलन जो है, रोज के एंथर से पॉलन अगर सनफ्लावर के स्टिग्मा के पास जाते हैं तो पॉलिनेशन नहीं होगा, right? Then the pollination will not take place because they are of different species. The flowers are of different species. The plants are of different species. Clear? तो इसका मतलब रोज, सनफ्लावर, इस तरीके से सेम जो होते हैं plants of the same species will undergo pollination. Clear children? Now see, self-pollination is also known as autogamy. और उसी तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज एलोगैमी, राइट? अब क्रॉस पॉलिनेशन जो है इट इज फाउंड इन द प्लांट्स लाइक कॉर्न, शुगर केन। ओके, नाउ सी, यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन। अब दो अलग अलग प्लांट्स हैं और ये जो पोलन ग्रेन है ये एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के पास पहुंचेगा कैसे? हाउ विल इट गो? इसके लिए इट रिक्वायर्स सर्टेन एजेंट्स, राइट? नाउ द एजेंट्स और जो ये कर रहे हैं, जो ये हेल्प कर रहे हैं पॉलन को मूव करने में, दे आर नोन एज द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सबसे कॉमन जो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है, दे आर सेड टू बी द इंसेक्ट्स। दे आर सेड टू बी द मोस्ट कॉमन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर द वन हु डू दिस प्रोसेस for the maximum time, right? When an insect, जब एक insect visits a flower, किसी भी flower के ऊपर बैठता है to collect the food, right?
अगर वो उसके एंथर पे बैठा है, राइट, तो व्हाट विल हैपन, पोलन ग्रेन जो होते हैं दे आर वेरी 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 माइन्यूट पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर मोस्टली, तो वो उस पे स्टिक हो जाते हैं, उस पे चिपक जाते हैं उसकी बॉडी पे, इंसेक्ट की बॉडी पे, राइट। अब यही इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर के पास जाके और उसके स्टिग्मा पे अगर वो बैठ जाता है, तो स्टिग्मा पे जब वो बैठता है तो कुछ ये पॉलन जो बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, दे फॉल ऑफ ऑन द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, ठीक है, वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर सकते हैं। अगर वो वहां पे गिर जाते हैं देन इट इज सेड टू बी पॉलिनेशन, राइट। सो इन दिस वे ट्रांसफर हो गए, और ये ट्रांसफर में हेल्प किसने करी, इंसेक्ट्स ने। सो इंसेक्ट्स, this is the pollination which is done by means of insects. When this insect, it visits another flower, got it? Suppose one insect is there, it is sitting on one flower to collect its food. तो उस फ्लावर पे जो अगर वो एंथर पे बैठा है तो वहां पे पोलन ग्रेन उससे स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। पोलन ग्रेन का जो उसका जो टेक्सचर होता है या कैसा होता है, वो बहुत स्टिकी होता है, राइट। तो वो जब इंसेक्ट उस पर बैठता है तो वो स्टिक हो जाता है इंसेक्ट की बॉडी पे, राइट। और जब वो इंसेक्ट उस पोलन ग्रेन उसकी बॉडी पे स्टिक हो गए, अब यही इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर के पास जा रहा है और फूड लेने के लिए, तो ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये वहां पे कुछ कुछ गिर जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये पॉलिनेशन होता है, एंड दिस इज द पॉलिनेशन विच इज सेड टू बी डन बाय मीन्स ऑफ इंसेक्ट्स। अब जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, मोस्टली उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, द फ्लावर्स दे आर वेरी ब्यूटिफुल, दे आर ब्राइटली कलर्ड, उनका जो कलर होता है वो बहुत ब्राइट होता है ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। सेकेंड थिंग, फ्लावर्स दे प्रोड्यूस सेंट दैट अट्रैक्ट द इंसेक्ट, फ्रेग्रेंस जो होती है इन फ्लावर्स की वो बहुत अच्छी होती है क्योंकि उनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है, राइट। तो उसके लिए अट्रैक्ट करने के लिए यू शुड हैव समथिंग डिफरेंट, यस। Some flowers produce nectar. Insects visit flowers to collect the nectar, right? कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं और यही नेक्टर लेने के लिए इंसेक्ट्स फ्लावर्स के पास आते हैं और हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के प्रोसेस में। नाउ सी पोलन ग्रेन्स दे आर स्टिकी, प्रोड्यूस्ड इन लेस नंबर्स। पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं और ये कम नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, स्पेशली जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें, राइट। नाउ द एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर डेलिया, रोज, सनफ्लावर। All these flowers, they are insect pollinated. Insects are the one who carry the pollen grain from the anther to the stigma of the another flower. Okay? Now pollination by wind. अब एक तो था हमारा जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है पॉलिनेशन में, वो है इंसेक्ट्स। सेकेंड है विंड, हवा। हवा उड़ा के ले जाती है पोलन ग्रेन को। हवा को किसी चीज को उड़ाकर ले जाने के लिए द थिंग हैज टू बी लाइट, ठीक है, हल्की होनी चाहिए वो चीज। किसी भारी भरकम चीज को हवा उड़ा के ले जाएगी, नो, उसके लिए बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म या आंधी तूफान चाहिए। क्लियर चिल्ड्रन? सो पोलन ग्रेन्स ऐसे फ्लावर्स में जिसमें विंड पॉलिनेशन होता है, तो वहां पे जो पोलन होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पोलन दे आर वेरी लाइट, राइट, बहुत हल्के होते हैं और ड्राई होते हैं जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर. So when the wind blows, what happens? These pollen, they are moved from the anther to a number of places along with the stigma of the another flower or of the same flower, right? Or of the same flower. तो इस तरीके से wind help करती है pollination में. Wheat, maize, palm, grasses, इन सब में wind pollination होता है. Then the third type of agent is water. This takes place, अब ये जो होता है water pollination, it takes place especially in the plants, in the aquatic plants. Now the most common example of this is Vallisneria and Hydrilla. Now what happens in the case of Vallisneria? See, it is a completely submerged plant. पूरा पानी के अंदर होता है ये plant. Now what happens? The transfer of pollen takes place. पानी जो है वो ट्रांसफर कर देता है पोलन को एंथर से स्टिग्मा की तरफ, राइट? सो
फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने के लिए सबसे पहले पॉलिनेशन शुड बी देयर, पॉलिनेशन शुड बी डन. Clear? Then only further the next step is fertilization. If the pollination has not been done successfully, then the fertilization cannot be done. Right? So, what are the various agents of pollination? Pollination by insects, wind and water. Clear, children? Now see, the pollination by wind here, the pollen grains, as I told you, they are very light and dry. एंड स्टिग्मा, जो स्टिग्मा होता है फ्लावर का, वो कैसा होता है, वो लार्ज होता है और फेदरी होता है टू सो दैट इट कैन कैच द पोलन ग्रेन्स, नाउ सी here the difference has been given between the insect pollinated flowers and the wind pollinated flowers. Now see, insect pollinated flowers कैसे होते हैं, लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड, जबकि विंड पॉलिनेटेड जो होते हैं वो होते हैं स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस, मीन्स क्लियर, छोटे होते हैं और बहुत सिंपल टाइप के फ्लावर्स होते हैं. राइट? नेक्टर एंड सेंट इज प्रोड्यूस, फूड इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर्स एंड सेंट, फ्रेग्रेंस इज ऑल्सो प्रोड्यूस, जबकि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में ऐसा नहीं होता. पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी, और यहाँ पे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में क्या होता है, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो ड्राई होते हैं. पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लेस क्वांटिटी, और जबकि विंड पॉलिनेटेड में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं. Clear, children? So this is the basic difference between the insect pollinated flowers and the wind pollinated flowers. Okay? Now one more thing I think I have left in between. As we were discussing about self-pollination and cross-pollination, अगर हम self-pollination की बात कर रहे हैं, then what will happen if, see, self-pollination same flower में या same plant के दो different flowers में, right? तो इसके लिए क्या होता है, agent here, अगर same flower में, अगर bisexual flower में pollination हो रहा है, तो it does not need any agent. पर एजेंट की जरूरत कब पड़ती है, when two different flowers have to undergo pollination. जब pollen grains को जाना है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास, then only it requires the agents. So at that time the agents that we had discussed, they play a role. I hope you have understood the chapter. Still, if any query is there, you can contact me. Okay, children, you can put a question and I'll try to sort it out. Okay, this is, as I told you, this is an important chapter. Again in 6th standard, you will be learning more about flower. So please understand this chapter properly. If you haven't understood anything, ask me and get your doubts clear. Thank you.